Jain everyone, myself Mayank Trivedi, Assistant Professor in the Department of Computer Engineering, Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. Today I am going to discuss about the one of the most important topic of computer organization and architecture, that is Booth's algorithm. Now, the Booth algorithm is the most important topic in the this particular subject. Why? Because it is used to multiply the numbers, binary numbers. Basically, when we used to multiply the two integers, we have to do in a binary format. सीधे सीधे तौर पे ये कह सकता हूं कि जब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं, बेसिकली हम यहां पे बूथ एल्गोरिदम को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ALU की बात कर रहे हैं, और ALU में जब हम बात करते हैं तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और एल्गोरिदम मिलती है हम लोग को, मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम फॉर द अनसाइंड इंटीजर्स। वहां पे हम अनसाइंड इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जिसको फॉरवर्डली इंप्रूव किया गया और उसको बोला गया बूथ्स एल्गोरिदम। ठीक है, बूथ एल्गोरिदम में हम लोग क्या करेंगे, हम साइंड और अनसाइंड दोनों इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। अब बूथ एल्गोरिदम को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज की जरूरत है। वो बेसिक नॉलेज में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना चाहिए। हमें बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, हमें शिफ्ट ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए, हमें 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, हम लोगों को एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हम लोग को है तो हम बूथ एल्गोरिदम को बहुत आसान से अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स गेट टू द टॉपिक ऑफ फर्स्ट टॉपिक। So let's get to the next topic, that is known as binary number system. अगर binary number system की बात करें तो binary number system is a system that is used to represent various number using only two symbols, that is 0 and 1. The term binary comes from the word that is known as bi. Bi means 2. Hence this number system is known as binary number system. यहां पे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के अलावा भी बहुत डिफरेंट नंबर सिस्टम्स आते हैं, जो दैट इज नोन एज नंबर 1 द बाइनरी नंबर सिस्टम इटसेल्फ, द ऑक्टल नंबर सिस्टम, द डेसिमल नंबर सिस्टम, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. Each number system have its own base, own representation. We can also say that the binary number system have base 2. This base is also known as radix. Now, the octal number system has base 8. The decimal number system has base 10. The hexadecimal number system has base 16. Why all these number systems have bases 2, 8, 10 and 16? Just because the binary number system, binary contains two elements, that is 0 and 1. That is why it is represented by the base 2. Now, the octal number system is having values from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. That is represented by 8. We have 8 values. In decimal number system, decimal, we have 10 values. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That is why it is represented as base 10. In hexadecimal, we have representation of 16 digits, ranges from 1 to 9 and 10, 11, 12, 13, 14 and 15. 14 and 15. That is represented by A, B, C, D, E and F. That is why the hexadecimal have base 16. We can represent it by this
like decimal number system, the number system with base 10 will be represented like 102 base 10, 24.579 base 10. Binary number system base 2 will be represented by using two symbols, that is 1010. Octal number system base 8 contains numbers from ranging from 0 to 7. In hexadecimal number, we represent the number using 2, 1, 0 to 9 and A to F. If we're talking about a number that is 749 base 8, is this number is included in octal number system? No. Why? Because it contains 9. 9 is not a part of octal number system. Now, first of all, we have to understand binary conversion, and in Booth's algorithm, we have to understand the basic conversion, that is from binary to decimal and decimal to binary. If I talk about binary and decimal, so if we convert the number from binary to decimal, we multiply. We multiply each and every bit of binary number with 2. And if we convert the decimal number into binary, then we divide. Multiplied by 2 and divide by 2. Now, first of all, we have to understand binary to decimal conversion. The binary number is converted into decimal number by multiplying each digit of binary number by the power of either 1 or 0 to the corresponding power of 2. Let us consider that a binary number has n digits, b, that is a n minus 1 and so on, a3, a2, a1, a0. Now, the corresponding decimal number is given as d is equals to a n minus 1 into 2 to the power n minus 1, a 2 to the power 3, a2 2 to the power 2, a1 2 to the power 1 and a0 2 to the power 0. This is basically the whole formula to convert the binary number into decimal. Let's take an example. We have to convert 10011 into decimal. So we have to multiply each and every digit and add that digit. Then from left hand side, we have to mention the power of each 2. Now we have to calculate. Now 2 to the power, any power 0 will result as 1. That is why this will give 1 into 1. This will give 1 into 2. This will give 0, 0 into 4. This will give 0 into 8. This will give 1 into 16. And now we have 16 plus 8 plus 0 plus 2 plus 1. This will gives 19 in the form of decimal. Now let's move on to the decimal to binary conversion. A decimal number is converted into binary number by dividing the given decimal number by 2 continuously until we get the quotient as 1. And we write that number from downwards to upwards. Let's take an example. We have a number 28. Convert this number into binary number. Divided by 2. 2 ones are 2, 2 fours are 8, 2 sevens are 14, 2 threes are 6 and 2 ones are 2.
we have now when we divide each and every number, so what will we get from the remainder we write here. So when we divide the 28 by 28, then 2 ones are 2, 2 fours are 8. The whole will be divided, so 0 will be taken here as. Now 2 sevens are 14, that is why 0 here. 2 threes are 6. Now the remainder will be 1, and 2 ones are 1, like this one. So from downward to upward, we write like 1 1 1 0 0 in binary. Let's check it. So we divide 28 by 2, then 14, 2 7 2 3 2 1. Now the binary we get is 111 0 0. Let's move on to the next topic, that is addition and subtraction in number system or in binary. When we add two numbers like 0 0, we will get addition as 0 and a carry of 0. 0 plus 0 gives 0. Now 0 plus 1 gives 1. Then 1 plus 0 will gives 1. And 1 plus 1. 1 plus 1 in arithmetic, 1 plus 1 will gives 2. And that 2 will be represented in binary as 1 0. That is why the output of the sum of 1 and 1 will be 2, and we forward with the value of 1, that is a carry. So that is why 1 and 1 gives 0 and 1. Now talking about subtraction. So in subtraction, 0 and 0 will gives 0, 0 1 will gives 1, but यहां पर आपका 0 में से 1 माइनस हो रहा है. क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 0 में से 1 माइनस कर लें? नहीं है, हम नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर एक नंबर बोरो करना पड़ेगा हमारे नियरेस्ट से. जैसे मैं यहां पे एक बोरो करूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी? 1 0, एंड 1 0 विल बी 2. अब 2 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा, दैट विल गिव 1. And this will be the possibility to subtract 0 and 1. That is why यहां पे 0 को 1 से जब हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? 1, क्योंकि यहां पे मिल रहा है. और क्या करा हमने? यहां पे 1 को बोरो किया. नेक्स्ट 1 को 0 से माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, बोरो में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई डायरेक्टली 1 जो है वो बड़ा है और 0 जो है छोटा है. 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. Addition of two number, that is 7 and 9. The 7 will be represented by 0 1 1 1 and 9 will be represented by 1 0 0 1. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने 7 को 0 1 1 1 से क्यों रिप्रेजेंट किया, जबकि 7 को तो हम 1 1 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे. बिकॉज क्योंकि 9 की अगर मैं बात करूं तो 9 जो है वो मेरा 1 0 0 1 होता है, जो कि मेरी क्या है? 4 बिट की इंफॉर्मेशन है. यहां पे 7 की अगर मैं बात करता हूं तो 7 मेरी 3 बिट की इंफॉर्मेशन है. अब अगर मैं 3 बिट की इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा हूं 4 बिट की इंफॉर्मेशन के साथ, तो एट लास्ट यहां पे अगर मैं 0 भी बढ़ा दूं तो कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा. दैट इज वाई कि मैंने यहां पे क्या करा? 0 1 1 1 लिखा. नाउ अगर मैं 7 को 9 से प्लस करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? 16, एंड 16 विल बी रिप्रेजेंटेड एज दिस. ठीक. अब एडिशन करते हैं. चलो यहां पे देखो 0 0 पे 0 मिलना है, 0 1 पे मेरे को 1 मिलना है, 1 0 पे मेरे को 1 मिलना है, एंड 1 1 पे मेरे को 0 एंड 1 मिलना है. ये चीज को हमें याद रखना है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखें 1 1, जैसे ही मेरे को 1 1 मिला तो 1 1 पे क्या है? 0 और 1 है. ठीक है. 1 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा. तो यहां पे क्या हुआ? 0, और यहां पे क्या हुआ? 1 कैरी हो गया. ठीक है. अब 1 प्लस 1 क्या हुआ? 0. 1 कैरी फॉरवर्ड हो चुका है. ये देखो 1 कैरी फॉरवर्ड हो चुका है. ठीक है. एंड यहां पे क्या आ गया? 0.
नाउ 1 प्लस 1 0, ठीक, एंड 1 इज कैरी फॉरवर्डेड. नाउ 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 0 एंड 1. तो यहां पे हम लोग क्या मिला 1 0 0 0 0. ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर दैट इज 9 एंड 7. 9 की बाइनरी हो गई आपकी 1 0 0 1 1 0 0 1 एंड 7 की हो गई आपकी 0 1 1. ठीक है, इनको माइनस करते हैं. ठीक है, अब माइनस में देखो जब 1 1 मिलता है तो 0 0 मिलेगा. ठीक है, बोरो 0 रहेगा. चलो तो यहां पे देखो 1 1 की अगर हम बात करते हैं तो 1 में से 1 गया 0. ठीक, अब क्या आया है 0 एंड 1. अब 0 जब 1 आता है तो 0 एंड 1 में क्या होगा, आंसर तो 1 मिलेगा बट आप क्या कर रहे होगे, बोरो कर रहे होगे 1 को. ठीक है, 1 बोरो कर रहे होगे. अब यहां पे देखते हैं 0 और ये क्या है 1. 0 क्या है, छोटा है 1 से, तो आप क्या करोगे, बोरो करोगे. ठीक है, अब बोरो यहां पे अगर आप करते हो, ठीक है, तो यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है. तो क्या 0 बोरो दे देगा 1, नहीं देगा. तो ये क्या करेगा, ये इससे बोरो करेगा. ठीक है, अब ये इससे बोरो करेगा तो बेसिकली ये हो क्या रहा है यहां पर, ये हो क्या रहा है यहां पे, तो ये जो 1 था, ये जो स्टार्टिंग का 1 था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में, क्योंकि इसने क्या करा, अपना 1 इसको फॉरवर्ड कर दिया. तो ये क्या बन गया 1 0 विच इज रिप्रेजेंटेड एज 2. अब इसके आगे क्या है, यहां पे 1 0 हो चुका है. अब इसके आगे क्या है 0, इसने इससे मांगा तो ये क्या करेगा, ये फॉरवर्ड करेगा 1, तो ये हो गया 1 0. लेकिन अब जो ये 1 0 था ये कन्वर्ट हो गया किस में, 1 में, क्योंकि ये 2 था. 2 में से एक वापस उधर देंगे, बगल वाले को देंगे, तो वो हमें क्या दे देगा 1. उधर आगे 1 चला जाएगा और इसके पास क्या रह गया, सिर्फ 1. ठीक है, दैट इज वाई यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया 1 0. ठीक है, नाउ that 1 0 will gives that 1 0 will gives what 1. ठीक, अब यहां पे अगर हम देखें तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, बेसिकली यहां पे क्या रह गया, यहां पे 0 की जगह 1 रह गया. नाउ 1 1 क्या देगा, 0 देगा, और यहां पे क्या है 0, तो यहां पे क्या रह गया 0. ठीक है, अब अगर मैं देखूं 9 में से 7 को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा 2, जिसको हम 0 0 1 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, यहां पे देखो 1 1 0 हो गया, यहां पे 0 1 है, तो 0 को 1 से करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा. जैसे ही एक बोरो किया, ये वैल्यू क्या हो गई 2, 2 में से 1 माइनस करा 1 बचा. ठीक है, यहां से कैरी हुआ था तो यहां पे 1, यहां पे क्या रह गया, यहां पे 2 आया था, 2 से 1 यहां पे इधर गया तो इधर ये 2 बना, तो ये क्या रह गया 1 रह गया. अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा. ठीक है, और एट लास्ट यहां पे क्या रह गया, यहां पे हमारा 0 रह गया, तो 0 0 क्या मिला, हमें 0 मिल गया. ठीक है, तो ये था हमारा सब्सट्रैक्शन. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट के बारे में. चलिए 1s कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, 1 0 0 1. ठीक है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली बस हमें क्या करना होता है, इंटरचेंज करना होता है. 0 को 1 करना है एंड 1 को 0 करना है. तो इसका जो 1s कॉम्प्लीमेंट, इस पर्टिकुलर का जो 1s कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा 0 1 1 0. दिस विल बी द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन. ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक बाइनरी दे रखी है, उस बाइनरी में जो 1 है उस 1 की जगह पे हमें क्या कर देना है 0, जो 0 है उसकी जगह पे क्या कर देना है 1. तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब अगर मैं 2s कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फॉर 2s कॉम्प्लीमेंट वी हैव टू find the 1s complement of binary and then we have to add 1
विद LSB। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल में देखिए 1001, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करा तो 0110, ठीक है। और 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, LSB में 1 को ऐड कर देना है, तो ये आपको क्या दे देगा, 0111, दैट दिस विल बी द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1001। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आती है शिफ्ट ऑपरेशन। तो शिफ्ट ऑपरेशन हम लोग को दो तरीके का मिलता है, एक मिलता है लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन और दूसरा मिलता है अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन। लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन की अगर बात करें तो हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन और राइट शिफ्ट ऑपरेशन मिलता है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक बाइनरी है 1010 और हम उसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट यानी कि यहां पे इधर की तरफ मूव करेंगे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, जो हमारी LSB है, LSB को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहां पर। ये बिट कहां चली जाएगी, यहां पर। ये बिट कहां चली जाएगी, यहां पर। ये बिट कहां चली जाएगी, यहां पर। और ये जो 1 है ये क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। ये बिट क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। अब जो LSB था उस LSB में क्या आएगा, तो LSB में बेसिकली हम क्या कर देंगे, 0 इंसर्ट कर देंगे, ठीक। जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो सेम टास्क करेंगे, बट हम इस बार क्या करेंगे, राइट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। राइट मतलब इधर साइड की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1 को यहां शिफ्ट किया, 0 को यहां शिफ्ट किया, 1 को यहां शिफ्ट किया, और ये जो 0 बचा ये क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक। बट LSB यानी कि MSB पे हम लोग क्या करेंगे, तो MSB पे हम लोग 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन। अगर मैं अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन की बात करता हूं तो वो अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहां पे भी हम लोग राइट एंड लेफ्ट की बात करते हैं, राइट ऑपरेशन होगा और लेफ्ट ऑपरेशन होगा। चलिए सबसे पहले राइट ऑपरेशन को देखते हैं। बाइनरी मेरी है 1010, ठीक है। मेरे को राइट में शिफ्ट करना है, ठीक है। मैंने 1 को शिफ्ट किया यहां पर, 0 को शिफ्ट किया यहां पर, 1 को शिफ्ट किया यहां पर। अगर मैं लॉजिकल की बात करता था तो लॉजिकल में क्या था कि जो मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी उस पे मैं क्या कर देता, 0 इंसर्ट कर देता था। बट इन अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन हम क्या करेंगे, इसी को वैल्यू को वापस से कॉपी कर देंगे, दैट इज यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन है। लेफ्ट की अगर बात करूं तो लेफ्ट इज जस्ट लाइक लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। 1010 मेरे को लेफ्ट की तरफ मूव करना है, यहां पे 0 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे मेरा 0 आएगा। और यहां पे क्या करूंगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे मैं यहां पे 0 इंसर्ट कर दूंगा। ये लेफ्ट ऑपरेशन बिल्कुल सेम टू सेम लेफ्ट ऑपरेशन है किसका, लॉजिकल और अर्थमेटिक का।